Hello everyone. Today I'm going to start the tense, and we have already learned present tense and all types of present tense, present simple present or present indefinite. Then we learned about present continuous, and after that I discussed with you present perfect, and after that yesterday I discussed with you present perfect continuous. So today, because we have already completed present tense and all the forms of present tense, we have already finished. So today I will start past tense, and in the same, like in present tense, the past tense has also full four types of tenses. The first one is past indefinite. We can also call it simple past, and the second one is again past continuous, and the third one is past perfect, and the fourth one is past perfect continuous. So let's start the past indefinite tense or past simple past tense. So you can see here the simple past or past indefinite tense is used to express an action that was completed at a definite point in the past. यानी कि एक वक्त पर एक टाइम पर एक काम पूरा हो गया था पास्ट में. और इट ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट और रूटीन, यानी कि जो काम आप पास्ट में किया करते थे उसको बताने के लिए. एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच वी यूज़ विद in past tense. Most of the time we use yesterday, last day, last week, ago, before, and last, and there are so many other words also. So again I'm going to repeat the sentences which tell us about the actions or activities which happened recently. It may be happened last day, day before yesterday, just before a while, in the morning, in the evening, but in this we use last morning, yesterday, day before yesterday, before 2 hours, today morning, yesterday evening. So these kind of sentence words are used in the end of the sentence, so we recognize it that it is simple past tense. So how can we recognize the sentences of simple past? यानी कि जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि in present tense we recognize the sentences ता है, ती है, ते हैं, आता है, जाता है, उठता है, पढ़ता है. तो इट वॉज अवर डेली रूटीन. बट इन सिंपल पास्ट हम उसी डेली रूटीन को पास्ट में बताते हैं कि मैंने कल ये किया, मैं कल वहाँ गया, मैं उठा, मैं सोया, मैंने पढ़ा, मैंने खाया, मैंने उठा, मैंने क्लास अटेंड की, मैंने पढ़ाया, मैं मार्केट गया, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की. तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस जस्ट गेट अ पॉइंट. या ये, मैं आया, वो हंसा, उसने खाना बनाया, हम गए, हम आए, हमने पढ़ा, हमने पढ़ाया, हम ऑफिस गए, हम मार्केट गए. सो दीज आर द एक्टिविटीज़ एंड दीज आर द सेंटेंसेस विच टेल अस अबाउट the simple past tense. We can say we can take the example that yesterday I woke up in the morning, then I got fresh, after that I had breakfast or I took breakfast, then I went to market, after that I came from market, then I did my homework, after that I attended my online classes, then I took my lunch, and then I took rest for some time, then I watched TV, I called my friend, and after calling my friend we met together, we took tea, then we discussed our homework, and then I came back to my home. After that I went for a walk in the park. So in all the sentences I am using second form. Same in simple present tense I was using first form of the verb, but in past tense I will use second form of the verb.
This is the only difference in present indefinite tense or simple present tense and past indefinite tense. This is the only difference. You can, if you remember the formula, you can see here subject in affirmative sentence. The formula is subject second form of the verb plus object. So this is the only difference in simple past tense and simple present tense. इसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाती है प्रेजेंट में और पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाती है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब सेम रहते हैं. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. नाउ वी विल कम टू लाइक रोशन कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे. तो दो चीज़ें हैं इस सेंटेंस में जो हमें बता रही हैं कि पास्ट में हो गया है, ये चीज़ गुजर गई है, हो गया है. फर्स्ट वन इज़ कंप्लीटेड बिकॉज इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्क. द सेकंड वन इज़ यस्टरडे. दोनों चीज़ों से हमें पता चल रहा है. Because of these two words, we are getting to know that this sentence is about simple past, right? Now, about the negative sentence. In negative sentence, in simple present tense, we use do or does. So you already know that what is the past of do? Obviously did. So here, present से past में आ रहे हैं, तो जब first form की second form हम use कर रहे हैं, तो do की second form भी और डज की सेकंड फॉर्म भी डिड यूज़ करेंगे यहाँ पर. करेक्ट. सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी विल यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब in past tense only in affirmative sentence, not in interrogative, not in negative, not in WH. No, absolutely not. Because we cannot repeat the same form of the verb twice in the same sentence. एक सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म को दो बार नहीं लिख सकते हैं, एस फॉर्म दो बार नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में किया था. डज़ को जो है हम दोबारा से जब हम लिखते हैं ही डज़ नॉट गो, तो हम ही डज़ नॉट गोज़ नहीं बोला. सेम यहाँ पर है कि ही डिड नॉट वेंट नहीं होगा, ये ही डिड नॉट कंप्लीटेड नहीं होगा. तो यहाँ पर भी सपोज दैट आप कहते हो कि अभी मैं कुछ सेंटेंस नेगेटिव में बोलने जाऊँगा. येस्टरडे आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट वेक अप अर्ली, आई डिड नॉट अटेंड माई क्लास, आई डिड नॉट, बिकॉज आई एम यूजिंग आई. बट इफ़ आई विल यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सो आई विल say he did not wake up, he did not go to school, he did not eat food, he did not run, he did not go for walk, he did not play. So in this sentence कोई डिफरेंस नहीं है. सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबके साथ तो डिड आना है, सबके साथ डिड आना है नेगेटिव में. सिंगुलर से प्लूरल तक हमें कोई मतलब नहीं है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि दो सेकंड फॉर्म हम यूज़ एक साथ नहीं कर सकते हैं. तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वापस आ जाएगी. सेकंड फॉर्म विल बी यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डिड नॉट गो, नॉट आई डिड नॉट वेंट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस. आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट राइट, यू डिड नॉट कम, यू डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट स्लीप. तो दीज आर द करेक्ट फॉर्म्स. सो एंड नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, ऑब्वियसली डिड विल कम फर्स्ट. तो यहाँ पर दो है ही नहीं कि किसके साथ डिड आएगा किसके साथ क्या आएगा, सबके साथ डिड ही आना है. डू डज की तरह यहाँ पर भी हम डिड पहले ले आए, देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्वियसली द क्वेश्चन मार्क, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, डिड योर फादर स्कोल्ड यू फॉर योर मिस्टेक. क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें तुम्हारी गलती पे डांटा. डिड योर फादर स्कोल्ड यू. ऑब्वियसली दिस इज़ द यस नो क्वेश्चन. इन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वन इज़ यस नो एंड वन इज़ WH क्वेश्चन. इन WH फैमिली वाई, WH विल कम फर्स्ट. वाई डिड योर फादर स्कोल्ड यू, आपके फादर ने आपको क्यों डांटा. तो इन दिस सेंटेंस इन WH वी हैव टू गिव द प्रॉपर रिप्लाई. हमें प्रॉपर रिप्लाई देना है. अरे भाई क्यों डांटा, मैंने गलती की थी, या उनको पता नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वट एवर यहाँ पर. बट इन इंटेरोगेटिव यस नो क्वेश्चन, डिड योर फादर स्कोल्ड यू फॉर योर मिस्टेक, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारी गलती पे तुम्हें डांटा, तो हाँ या ना. सो दिस इज़ द रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन पास्ट
the past forms remain the same in all the three person, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सबके साथ पास्ट में सेम ही फॉर्म रहेगी. कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड ही रहेगा, रोट है तो रोट ही रहेगा, उसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू देखो कोई डिफरेंस नहीं होगा. नेगेटिव में भी डिड सबके साथ डिड ही लगेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा. यहाँ पर यू कैन सी द एग्जाम्पल, दे फिनिश द वर्क, यू फिनिश द वर्क, ही फिनिश्ड, तो सबके साथ सेकंड फॉर्म आई है. और नेगेटिव में सबके साथ डिड लगा है. ओके, so today I will finish only one tense just because of the video is getting long, and in the next video we will start past continuous. Thank you.